आज हम पढ़ेंगे about Saint Thomas Aquinas, who, as you can see quite clearly, was a person from the 13th century and an enormously influential philosopher, theologian, and thinker. He was born in 1225 and passed away in 1274. He was basically Italian and belonged to a particular school of thought within Christianity, जिनको हम Dominicans कहते हैं. And he's also considered a jurist. And आपको बता नहीं सकता कि medieval period या late medieval period के सबसे influential philosopher जो हैं वो Thomas Aquinas ही माने जाते हैं of the Christian world naturally. So he was a proponent of natural theology. ये मैं अभी explain करूँगा थोड़ी देर बाद. And he tried to prove that there is no conflict between reason and faith. Mainly his lifelong attempt was to synthesize Aristotelian philosophy with Christian value. Main बात उन्होंने यही की क्योंकि उस period के अंदर Aristotle was being rediscovered and all these questions were being raised about ancient Greek philosophical thought versus Christian thought, etc. And as I've written over here, he was the most influential thinker of the medieval period. उनके जो famous works include the Summa Theologica, Disputed Questions on Truth, and the Summa Contra Gentiles. So these are his most important works. There are others as well, but these are his famous ones. अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि there was a revival of philosophy in Europe thanks to this person here, Ibn Rushd, जो कि of course Spain में थे, and he was writing mainly against Al-Ghazali and that interpretation, that school of thought, जिसको Ashari school of thought कहा जाता है. And अपनी writing में उन्होंने Aristotle को ना सिर्फ translate किया, from Greek it went to Arabic, from Arabic it went to Latin, बल्कि उसके साथ साथ कुछ short commentaries भी लिखी और कुछ long commentaries भी लिखी, यानी कि his own ideas कि what Aristotle is trying to say. ये जो long commentaries, short but mainly जो long commentaries थी, इसमें इब्न रुश्द के अपने ideas reflect हो रहे, क्योंकि उसमें Aristotle भी था, मगर mixed into that of course were his own ideas of how to read or understand what Aristotle is saying. और उसमें Muslim philosophy ने जब generally Socrates और प्लेटो और अरिस्टोटल को पढ़ा और प्लोटाइनस और लोगों को पढ़ा, तो मुसलमानों ने इनको एक तरह से इनके दरमियान जो इख्तलाफात थे उनको एक तरह से कम करके प्रेजेंट किया, ऐसे प्रेजेंट किया कि ये सारे एक ही बात कर रहे हैं मोर और लेस. तो कई चीज़ें जो प्लेटो के साथ मुंसलिक हैं वो मुस्लिम इमेजिनेशन में, फिलॉसफी में अरिस्टोटल के साथ भी मुंसलिक हो गई. कई चीज़ें जो अरिस्टोटल के साथ मुंसलिक हैं वो सोक्रेटिस के साथ हो गई, वगैरह वगैरह. The three of them really sort of, in fact the four of them including Plotinus etc. really sort of form one block of thinking for Muslim philosophers. अब Ibn Rushd ने जब लिखना शुरू किया, which is in the 12th century, his writing was so influential. Christians were also reading, और इतना उनका असर हुआ कि there was a whole school of thought amongst Christian theologians जो कि Ibn Rushd को अपना उस्ताद मानते. ऐसा इन्फ्लुएंस डेवलप होना शुरू. यूरोप के अंदर ऑफ कोर्स जब इब्न रुश्द के वर्क्स लैटिन के अंदर ट्रांसलेट होके फैलने शुरू हुए, तो जो स्कूल ऑफ थॉट था वेंट विद हिज लैटिनाइज्ड नेम व्हिच इज एवरोस. इस नाम से दे वर नोन. चर्च मीनवाइल एरिस्टोटल को कंडेम ही करी जा रही. 1270 के अंदर भी उन्होंने देखें कहा कि ये तो बिल्कुल एरिस्टोटल जो है वो बड़ा गलत आदमी है और ये तो हेरेटिक है और ये तो रब को नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी की मैसेज को नहीं कबूल करता, एंड व्हाटएवर इज आउटसाइड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज एनीवे इररेलेवेंट. तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो डोमिनिकन ऑर्डर है वो डेवलप हुआ. और ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है, मगर इसके अलावा भी एक कॉन्टेक्स्ट है, और वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये है कि डोमिनिकन ऑर्डर का ये ख्याल था कि हमने प्रोसेलेटाइज करना है, हमने जूस को भी क्रिश्चियन बनाना है, हमने मुसलमानों को भी क्रिश्चियन बनाना है, हमने पेगन्स को क्रिश्चियन तो बनाना ही है, हमने मैक्सिमम लोगों को क्रिश्चियन बनाना है. और इस मकसद के लिए वो ये करते थे कि दे डिडंट वांट टू लीव इट टू द स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी और एनीथिंग.
बल्कि उन्होंने आप समझे एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल कार्डर तैयार करना शुरू, यानी कि उनका काम ही ये था कि लिखने पढ़ने का काम, जो डोमिनिकन ऑर्डर था उसका काम था कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखने पढ़ने पर तवज्जो दें और दूसरे की थियरी को पलटाने में जो है ना उस पर फोकस करें. So they thought of themselves as also basically as intellectual crusaders, कि हम भी क्रूसेड कर रहे हैं, हम भी जंग कर रहे हैं, हम भी एक तरह से अगर मैं मुसलमानों का मुहावरा इस्तेमाल करूं कि हम भी जिहाद कर रहे हैं, मगर हमारा जिहाद जो है ना वो एक इंटेलेक्चुअल जिहाद. तो इस वजह से डोमिनिकन ऑर्डर जो है उसमें बहुत ऐसे लोग पैदा किए जो कि बड़े जो स्कोलास्टिक्स, फिलोसोफर्स, थियोलॉजियंस वगैरह बने. दूसरी तरफ जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, जो दूसरा मेजर ऑर्डर था, वो सेंट फ्रांसिस असीसी का ऑर्डर था. और उसका तरीका जो था वो बिल्कुल ही उल्टा था या डिफरेंट था. उसका तरीका ये था कि वो कहते थे कि क्राइस्ट ने हमेशा एक किस्म की पॉवर्टी में, जीसस क्राइस्ट लिव्ड इन अ काइंड ऑफ पॉवर्टी एंड विदाउट प्रॉपर्टी एंड विदाउट वेल्थ एक्सेट्रा. तो वो ये कहते थे कि हमने जो है ना इन दुनियावी चीज़ों को छोड़ना है मैक्सिमम हद तक. हमने कोई मलकियत नहीं बनानी, ना हमारे ऑर्डर ने कोई मलकियत बनानी, ना हमने एक मलकियत बनानी. हमने लोगों की खिदमत करनी और वी विल लिव ऑफ द आर्म्स दैट वी गेट फ्रॉम पीपल. जो लोग हमें दे देंगे उसी पे हम जिंदा रहेंगे, चाहे हमारे फटे हुए कपड़े हों, जिस तरह हमारे सूफी हजरात हैं. तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ सूफीज़म ये तो नहीं है कि आप बड़ा सा कोई वो बना लें गद्दी वगैरह टाइप और कोई मॉन्यूमेंट बना लें. दे ऑल्सो लिव्ड ऑफ द चैरिटी दैट वाज गिवन बाय पीपल टू देम. तो ये दूसरा मेजर ऑर्डर था. अभी इस पे मैं अब दोबारा से आऊंगा. तो इस पीरियड में जो राइटिंग का स्टाइल था, और अक्वाइनस ऑल्सो फॉलोज दैट स्टाइल ऑफ राइटिंग. अगर आप पढ़ें डायरेक्टली उनकी अपनी राइटिंग को, तो वो उस स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम कहते हैं स्कोलास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग आज कहते हैं. तो वो उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग बिल्कुल ऐसे था जिस तरह हमारा ट्विटर और फेसबुक पे स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है. इंस्टा पे तो इतनी लंबी डिबेट्स होती नहीं, बस तस्वीर देखो और आगे बढ़ो. मगर फेसबुक और ट्विटर पे तो बड़ी लंबी डिबेट्स होती हैं कि एक पहले बंदा एक चीज लिखता है, फिर उसका कुछ जवाब लिखता है, फिर उस जवाब का कोई जवाब होता है, फिर उस जवाब के जवाब का कोई जवाब होता है, फिर उस जवाब के जवाब का जवाब होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरह पूरी थ्रेड होती है. तो स्कोलास्टिक राइटिंग भी बेसिकली इस तरह थी कि दे आर सेट आउट एज आंसर्स टू क्वेश्चंस, followed by sub questions provoked by the answers to those sub questions, and so on and so forth. So this was Facebook before Facebook was created. इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को फिर जो जब कैथोलिक चर्च को एनलाइटनमेंट वगैरह के पीरियड के अंदर पीछे धकेला, जब रैशनलिस्ट फिलोसफी आई, तो उन्होंने स्टाइल ऑफ राइटिंग को टोटली रिजेक्ट कर दिया और अब कोई भी ऐसे नहीं लिखता. जो प्लेटोनिक डायलॉग्स हैं वो भी बाय द वे ऐसे लिखे कि पहले सोक्रेटिस एक बात करता है, फिर कोई उसका जवाब देता है, प्रोटैगोरस या व्हाटएवर, फिर उसका वो जवाब देता है, फिर उसमें से एक और क्वेश्चन निकला, फिर और क्वेश्चन निकला, चलता रहता. इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को अब हम स्कोलास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग कहते हैं. और अब कोई भी ऐसे नहीं लिखता, कोई भी ऐसे FAQ स्टाइल में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्टाइल में कोई भी एकेडमिक वर्क नहीं लिखा जाता, बल्कि जो भी ऐसे लिखता है इसको आज कंसिडर किया जाता है एज बैड स्टाइल ऑफ राइटिंग. ऐसे नहीं लिखना. इंस्टेड आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मगर वो टेक्स्ट में फ्लो करते हुए उनके जवाब आए, rather than question answer style. And that makes the reading of the text perhaps more natural, perhaps it flows better, and we are more used to reading it in that particular way. जब मैं भी बैठ के सेंट थॉमस एक्वाइनस को पढ़ता हूँ, तो मुझे भी बैठ के कट कॉपी पेस्ट करके पूरी उसकी आर्गुमेंट अरेंज करनी पड़ती है. कभी कभार मैं टेबल भी बना देता हूँ. दूसरी क्लास में मैं पढ़ा रहा था, आपको याद होगा, उसमें तो आप थे ना उस क्लास में, उसमें तो मुझे पूरा टेबल बनाने का मेरे दिल चाह रहा था कि इसका टेबल बन सकता है बड़ा अच्छा सा, क्वेश्चन आंसर, सब आंसर वगैरह वगैरह. तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट समटाइम्स टू रियली सॉर्ट ऑफ गेट अ फील फॉर द फ्लो ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वो इंटरप्ट होके चलती है. बट नॉनदलेस इफ यू लुकिंग फॉर द आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो बड़ी यूजफुल भी साबित हो सकती है, बिकॉज यू कैन गो स्ट्रेट टू योर द क्वेश्चन जो आपके जहन में है और उसको आप जवाब पढ़ सकते. In 1323, many years after his death, obviously, he was canonized, that is St. Thomas Aquinas. And later, when Protestant Reformation शुरू हुई और Protestants ने Catholics को challenge करना शुरू किया कि आपका नुक्ता नज़र तो सही है ही नहीं वगैरह वगैरह, तो फिर Thomism became the kind of like the official philosophy of the Catholic Church. मगर अपने ज़माने में what St. Thomas Aquinas was doing
was a big departure from what the Catholic Church was. Because in a certain sense, Aristotle had been rediscovered, और चर्च जो है एरिस्टोटल के खिलाफ थी, और St. Thomas Aquinas wanted to create a kind of synthesis between Aristotle and Christian teaching. And in his own life, this was a major departure. You know, this was kind of thought कि ये तो बड़ी अजीब सी हरकत कर रहा है. तो Aquinas की ज्यादा जिंदगी पेरिस में गुजरी, और दिलचस्प बात ये, मैंने खास तौर पे आपके लिए बात निकाली कि जो उस जमाने की यूनिवर्सिटियां थी वो सबसे पहले लॉ स्कूल, उनको बनाया इस मकसद के लिए गया था कि अच्छे अच्छे वकील ट्रेन किए जाएं, ताकि जब हमें कोई मसला पड़े, हमें कोर्ट जाना पड़े, तो हमारे पास अच्छा वकील होना चाहिए. और फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉ से, पहले तो वो रोमन लॉ पे फोकस करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉ से वो डाइवर्ज करते गए और चीजें शामिल करते गए. यही वजह है कि अगर आपको लैटिन जबान आती है, आपको तो पता होगा कितनी टर्में, आधे से ज्यादा वकील होने का मतलब ही होता है कि आप लैटिन जबान अगर कोई 500 लफ्ज सीख जाएं, तो इसका मतलब है कि लोग समझते हैं आप बहुत बड़े वकील हो गए, हेबियस कॉर्पस एंड ये वो. तो बट बहरहाल इट्स ऑल इन लैटिन. व्हाई इज इट इन लैटिन? बिकॉज वो सारा रोमन लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, इसी वजह से. ये आप देख सकते हैं, ये यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, और एंड दिस वाज फाउंडेड इन 1088, और इसमें 90,000 स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहा है. और बाय द वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और पेरिस यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने आप को इसी यूनिवर्सिटी के ऊपर मॉडल किया है. ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरली द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, बट इट्स द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड टुडे. यानी कि दूसरी यूनिवर्सिटीज डिसकंटिन्यूअस हो गई, टूट गई, फिर दोबारा खड़ी करनी पड़ी, तैयार मतलब उसको दोबारा से तामीर करना पड़ा, एंड सो ऑन. So in universities के अंदर theology was always considered the queen of the sciences. By the way, ये phrase अक्सर फलसफे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, that philosophy is the queen of the sciences. Guess who uses that phrase? Obviously philosophers. And guess who uses this phrase? Obviously theologians. ठीक है, जो शुरू में जो empirical scientific aspect था Greek thought का, वो एक तरह से लोग भूल चुके थे, यूरोपियंस भूल चुके थे. जो एस्पेक्ट उनको ग्रीक फलसफे का या पता था और जो उनकी क्रिश्चियनिटी का हिस्सा बन चुका था, वो प्लेटो या प्लोटाइनस का काम था. खास तौर पे टाइमियस से जो काम है वो उसका हिस्सा था. स्पिरिट का आइडिया, ड्यूअलिज्म का आइडिया, यू नो द आइडिया दैट विल गो इनटू दिस, आवर स्पिरिट विल असेंड टू दिस अदर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एक्सेट्रा, वो क्रिश्चियनिटी के साथ बड़ी अच्छी तरह से मैश हो चुका था और उसका हिस्सा बन चुका था. So this aspect was familiar to them, but this other aspect, you know, जो उनकी scientific study थी, खास तौर पे एरिस्टोटल की scientific studies के plants और animals और life और ये और वो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, जो एरिस्टोटल की बड़ी जबरदस्त इन चीजों पे learning थी. Not all of it was correct, मगर अपने जमाने के हिसाब से तो वो बहुत एडवांस थी. वो चीजें जो हैं वो खो चुके थे. तो अरब्स ने उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया, और लैटिन के अंदर 1100 के अंदर ये वर्क्स ट्रांसलेट हो गए. And as I told you already, Aristotle was already to a very large extent Platonized by the Arabs, which obviously made it easier for the Christians to accept it, because वो मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लेटो का वो आइडिया कि सारी जो फॉर्म्स हैं they collapse into the one, and from the one everything emanates. That's a very easy idea to accommodate with the idea that God is the one from which all knowledge emanates. And of course, in Islamic philosophy also, especially in Islamic mysticism that we refer to as Sufism, ये सारे conclusions draw हुए. अच्छा जी, तो अब जो बड़ी डिबेट थी वो ये थी कि रीजन वर्सेस रेवोल्यूशन की डिबेट. एक तरह से आप गौर करें तो पाकिस्तान के अंदर, इवन मुस्लिम दुनिया के अंदर जनरली ये डिबेट आज भी जारी है. रीजन वर्सेस रेवोल्यूशन की डिबेट आज भी जारी. एक उसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो ये था कि जो ग्रीक्स थे जनरली, और एरिस्टोटल स्पेसिफिकली, वो ये कहते थे कि ये जो मादा है, मैटर है, जिससे ये सारी दुनिया बनी हुई है, हम भी आफ्टर ऑल मैटर के बने हुए, ऑन द वन हैंड, और ऑन द अदर हैंड हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई इममटीरियल चीज भी है जिसको हम स्पिरिट कहते हैं, जिसको हम रूह कहते हैं. ये दोनों चीजों का की कॉम्बिनेशन से हम बने हुए. ये जो सारे भाईजान थे, ग्रीक्स जो थे, वो तो ये कहते थे कि ये मैटर हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा. बड़ी दिलचस्प बात है, हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा. इट इज इन्फिनिट एंड यू नो इट इज रैशनली नेसेसरी. यानी ये कंटिंजेंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से ये उठा करके किसी ने पैदा कर दिया हो किसी वजह से या ऐसी कोई चीज. नो, इट्स ऑलवेज एग्जिस्टेड. अब ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, इस सेंस में नहीं कि
जो ग्रीक रैशनलिस्ट कह रहे थे उस पीरियड के अंदर। बट जस्ट इमेजिन कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है? वो देखो ना, कोई और भी बोल पड़ा है पीछे से, उसका फोन आ गया, क्या ये क्या बात की जा रही क्लास में? क्या ये, जरा जहन खोल के सोचना है इसके बारे में कि जब एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह यूनिवर्स के बारे में गौर करते हैं, और उन्होंने अब जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बना लिया और हबल टेलीस्कोप एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, तो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चीजें वहां से नजर आती हैं। ये नहीं कि कोई वापस देख रहा हो, हेलो क्या हो रहा है, ऐसी अजीबो गरीब चीजें नहीं, मगर अजीबो गरीब चीजें इस सेंस में जो मेरे मेरे जहन को, मुझे तो नहीं समझ आती कि कैसे हो सकता है, ये चीजें हो कैसे सकती। मिसाल तौर पे एक बड़ी पुरानी ऑब्जर्वेशन है कि हम यहाँ अर्थ पे बैठे हुए हैं, जो चीज हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे और दूर जा रही है। ये बहुत वियर्ड बात है, दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ आए। जो चीज हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे और दूर जा रही है। दिस इज क्रेजी, हाउ इज दिस पॉसिबल? और जिस तरफ दुनिया यूनिवर्स में मैं देखूं, यही हो रहा है, जो चीज मेरे से जितनी दूर है उतनी तेजी से मेरे से दूर जा रही है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, कोई चीज मेरे करीब नहीं आ रही, मतलब जो करीब आ रही है वो है थोड़ी सी चीजें, मतलब है कि एस्ट्रॉइड्स वगैरह दो तीन इस तरह की चीजें हैं, और दो गैलेक्सीज, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे इज गोइंग टू कोलैप्स इनटू द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारे neighbor, फिक्र ना करो, तेरी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है? परेशान हो गए सर, की गल कर रहे हो? दीज टू गैलेक्सीज आर गोइंग टू कोलैप्स इनटू ईच अदर सम टाइम, बट जितनी दूर चीजें हैं वो हमारे करीब नहीं आ रही, वो और दूर जा रही, सारी की सारी तकरीबन, एक्सेप्ट वो जो बहुत नियर है हमारे। तो अगर ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूं, आई डोंट नो हाउ टू गेट माई हेड अराउंड देम, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट देम, आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। फिर और भी कंफ्यूजिंग बातें ये हैं कि जी दुनिया के लेवल पे हम देखते हैं कि आइंस्टाइन की ये जो सारी मैंने थ्योरीज बयान की हैं, जो मेरा फेवरेट है, सोशलिस्ट भी था इसलिए डबल फेवरेट है, तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर ये सब चीजें जब हम सब एटॉमिक लेवल पे जाती हैं तो सारी चीजें गलत साबित हो जाती हैं। वहां पे क्वांटम थ्योरी स्टार्ट हो जाती है, भाई ये कैसे हो सकता है? वहां पे क्वांटम थ्योरी है, यहाँ पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, दोनों ही दुरुस्त है। Weird. Okay, I don't know what the answer is. But what if it turns out, I often think to myself, what if it turns out that these guys were right and that matter is in fact eternal, infinite, and so on? That the universe has no bang as its beginning and will have no bang as its end. It has always existed and will always continue to exist. If that is the case, तो फिर तो बहुत ही weird किस्म की बात, ठीक है ना, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बात। But right now, scientific consensus यही है कि the universe was created about 13 point something billion years ago. So, दूसरी तरफ, तो ये था, ये नहीं, ये जो मैंने सारी आपको फिजिक्स वाली बातें बताई, मगर ये पॉइंट ऑफ व्यू कि मैटर इज इटर्नल, इन्फिनिट एंड रैशनल, नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जो भी चीज है मादे की बनी हुई, उसकी शक्ल आप तब्दील कर सकते हैं। अगर मैं इस टेबल को जला दूं तो ये राख बन जाएगी, मगर उसी राख से, कोयले से मैं कोई और चीज बना लूंगा, यानी कि मैटर की शक्ल तब्दील हो जाती है, एनर्जी की शक्ल तब्दील हो जाती है, एनर्जी मैटर बन जाती है, मैटर एनर्जी बन जाती है, E is equal to mc square and all of that stuff, they convert into each other। मगर मैटर और एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। जितना टोटल मैटर है दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, जितनी टोटल एनर्जी है इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, mass plus energy, mass can convert into energy, mass can change form, energy can change form, but the total amount of mass and energy in the world, in the universe, cannot be altered. It has always existed and will always exist. तो ये एक बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो बेसिकली ग्रीक्स का पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके मुकाबले में जो क्रिश्चियंस थे, ऑब्वियसली जो क्रिएशनिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जुडाइज्म से क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो यही है, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज अ मैटर ऑफ डिवाइन विल एंड द वर्ल्ड इज इन इट्स एसेंस a historical entity with a beginning in God's first creation. Or why did God create and how did God create? Why and how did God create this incredible universe? The history starts with the fall of man, the fall of Adam when he eats from the forbidden fruit. And it ends with the second coming and the last judgment, the second coming of Christ and the last judgment, the day of judgment. And then after that, God's kingdom will be restored. So there's a whole beginning of this, or I should rather say beginning because it's a fall from the Garden of Eden into this material world, and a whole history that will accompany humanity until
it is reconciled, where good and evil are fighting themselves out, like in the Zoroastrian religion. But inside humanity, the light is the side that believes in God, and the darkness is the side that stands against it, etc. And that Christ will return and he will fight against the Antichrist, against all the evil that exists in the world, जिसको हम दज्जाल कहते हैं. He will fight against all the evil that exists in the world. All the evil will be on that side, and the good forces will be on the other side. And Christ will lead the good forces and destroy all the evil in the world. And then that is the day of judgment. And then, of course, will be the restoration of man to God's kingdom, the return to the blessed Garden of Eden. Right? So two very different ideas about how the world works. So इनके दरमियान अब आप देख सकते हैं, if this is revelation, this is reason, तो ये एक बहुत बड़ा conflict था. For philosophers, obviously, truth जो है वो revealed नहीं है, वो discovered है, वो discover करते हैं आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में, experiment करते हैं, या logically उनके बारे में सोचते हैं, या illogically सोचते हैं उनके बारे में, या subjectively सोचते हैं, जो भी करते हैं आप, मगर आप ये सारा process अपने ज़हन से और खुद करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं. For theologians, of course, the ultimate truth is revealed truth. That is where real truth lies. हम भी इस दुनिया को समझ सकते हैं अपनी नुक्त की ताकत से, अपने जहन की ताकत से, but the ultimate truth is that which is revealed. So now comes Saint Thomas Aquinas. ये contradiction नजर आप खुल गई जैसे एरिस्टोटल रीडिस्कवर होना शुरू हुआ, और एरिस्टोटल ने ये कहा कि ये दुनिया हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी है. तो ये दुनिया नहीं, मगर ये मादा हमेशा से था और हमेशा तक रहेगी वगैरह रहेगा. इसमें एक और दिलचस्प बात यह भी थी कि एरिस्टोटल एक बात आर्गुमेंट ये भी कहता है, द आर्गुमेंट ऑफ द फर्स्ट मूवर, ठक, कि कोई ऐसी चीज थी जिसने पहले इस मैटर को मोशन में पुश किया. फर्स्ट कॉज था वो, जिसकी वजह से मैटर जो है वो मोशन में आया और फिर ये दुनिया में नजर आई. मगर वो फर्स्ट कॉज जो है एरिस्टोटल के लिए, यू कैन थिंक ऑफ दैट एज गॉड, एंड समटाइम्स वी डू, मगर एरिस्टोटल के लिए वो कोई विल नहीं है, वो कोई it's not a will. So it's not because of a will, God wills the world into existence. But for Aristotle, it's like a natural force. Like it's like nature. So ye isliye, although Aristotle talks about the first mover, the first cause, that argument is not entirely satisfactory to theology, because theology believes that the world was created by the will of God and for a particular purpose and for a particular reason. So Aquinas कहता है, too much reliance on faith opens the door to irrationalism. अगर आप कहें कि भी रीजन को इस्तेमाल ही नहीं करना तो आप तो बिल्कुल जाहिल बन जाएंगे. रीजन बड़ा जरूरी है. एंड टू मच रिलायंस ऑन रीजन ओपन्स द डोर टू स्केप्टिसिज्म. और बहुत ही ज्यादा अगर आप रीजन लगे रहेंगे तो फिर आप एथियस्ट हो जाएंगे, स्केप्टिक हो जाएंगे. आप कोई ये भी नहीं मानेंगे कि दुनिया एग्जिस्ट करती है या कोई और एग्जिस्ट करता है. आप शायद ये भी कहें मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता. डेकार्ट की तरह आप शायद ये कहें कि एवरीथिंग इज अ ड्रीम एंड समबडी इविल इज ड्रीमिंग मी एंड आई जस्ट वांट टू बी आउट ऑफ दिस ड्रीम. गॉड, right? That's the ultimate of skepticism, right? Descartes skepticism. Aquinas कहता है reason is limited. Reason is given by God for worldly purposes. कि आप जो है अपनी जिंदगी को नुक्त की ताकत, मंतक की ताकत, दिमाग की ताकत इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी गुजार सके. Grace does not destroy nature but perfects it. So there's no contradiction between reason and revelation for Aquinas, because God has given us reason so that we can better understand not only the material world but also the ultimate reality behind this or above this material world, which of course reason cannot never fully grasp as long as we're on this world, which we will only fully grasp when we return to God. So reason leads us to acknowledge faith for Aquinas rather than to reject. Aquinas के अपने पीरियड के अंदर सियासी हालात ये थे कि मैंने आपको बताया होली रोमन एम्पायर जो है वो बन चुका था, और होली रोमन एम्पायर की एक बड़ी मजेदार किस्म की बात ये थी, अनलाइक ऑल द अदर big emperors and kings etc, कि they were an elected monarchy. उसकी वजह ये थी कि जो जर्मन्स थे वो उनका जो पुराना सिस्टम था which is called the mark was the community that the Germans had, the ancient Germans had, जो उनकी विलेज की कम्युनिटी होती थी उसको मार्क कहा जाता था. तो the mark had a peculiar tradition, peculiar for Europe at the time, कि वो अपने ट्राइबल लीडर्स को इलेक्ट किया करते थे और अपने वॉर लीडर्स को भी इलेक्ट किया करते थे और इलेक्ट और री-इलेक्ट करते थे. They were more democratic people, they were more egalitarian people. अगरचे रोमन्स उनको बारबेरियंस कहते थे. जो बारबेरियंस थे वो एक्चुअली उन सिविलाइज्ड रोमन से ज्यादा egalitarian और ज्यादा क्या कहना चाहिए डेमोक्रेटिक भी इन द ओल्ड वे. ठीक है. The Germans who were considered barbarians, and they were economically वो
इटालियंस रोमन से बहुत पीछे थे, बहुत प्रिमिटिव थे, और मगर वो ज्यादा एगैलिटेरियन थे और ज्यादा डेमोक्रेटिक भी थे। डेमोक्रेटिक नॉट इन द मॉडर्न सेंस के हर बंदा जाके को वोट डाल रहा है या समथिंग लाइक दैट, मगर उनकी जो मार्क की कम्युनिटी होती थी उसके अंदर वो अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते थे। तो रोम के साथ मुकाबले में, कई 100 सालों पर मुश्तमिल रोम के साथ मुकाबले में जर्मन्स ने लड़ना सीखा। जर्मन्स fought against the Romans and won. But it took them a long, long time. In that process of interaction between these peoples, the Germans started to learn कि Romans जो है वो जंग कैसे करते हैं, और उन्होंने कहा हम भी इनसे सीखें कि जंग करने का तरीका क्या है और हम भी इनकी तरह जंग करें। रोमन आर्मी जो है ना was the secret to the Roman Empire, of course. आर्मी के बगैर तो एम्पायर नहीं बनता। और रोमन आर्मी की बात यही थी कि वो हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, और वो हर बंदा इंडिविजुअली नहीं लड़ता था उसके अंदर, वो एज ए यूनिट लड़ते थे। और इवन अलेक्जेंडर की आर्मी की कामयाबी की वजह ये थी कि वो इंडिविजुअल ब्रेवरी पर या इंडिविजुअल स्किल पर रिलाई नहीं करते थे, वो रिलाई करते थे कि आपने एज ए यूनिट लड़ना सीखना है। तो 10 बंदों ने एज ए यूनिट लड़ना सीखना है। वो 10 बंदे कभी भी बैटलफील्ड में एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, वो हमेशा 10 बंदे अपने साथ इकट्ठे रहते थे और 10 के 10 इकट्ठे लड़ते थे और एक दूसरे के साथ ट्रेन करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि एज ए टीम हमने कैसे लड़ना है। दैट्स व्हाट वाज द सीक्रेट टू देयर पावर एंड स्ट्रेंथ। और फिर वो सॉर्ड्स और शील्ड्स वगैरह भी बना लेते थे और आर्मर भी बना लेते थे, तो वो और बेहतर लड़ लेते थे। जबकि जर्मन्स कहते थे कि मैं अपने मुंह पे पेंट लगाऊंगा डरावना किस्म का, बड़े से मैं फर्स पहनूंगा, अपने बदन पे भी डरावना किस्म का पेंट लगाऊंगा, वैसे बड़ी सर्दी है हो सकता है मैं अपने कपड़े भी उतार दूं और मैं पागलों की तरह उस पर लपकूंगा लाइक एन एनिमल, लाइक अ वाइल्ड एनिमल, और अपनी बहादुरी से उसको जो है ना क्रश कर। तो मगर वो ऐसे होता नहीं था, बिकॉज वो बड़े, हाँ हाँ बहुत बहादुरी से लड़े। मगर जब एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एक डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मी को लड़ेगी, एक डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मी कभी नहीं जीत सकेगी, इवन दो वो न्यूमेरिकली सुपीरियर थे। नंबर्स में वो ज्यादा होते थे, मगर रोमन आर्मी नंबर्स में कम होते थे, मगर टाइटली नेट ऑर्गेनाइज्ड दस्ते की तरह लड़ते थे, इसलिए वो उनको डिफीट करते। एनीवे द जर्मन्स लर्न फ्रॉम दैट, एंड आफ्टर लर्निंग फ्रॉम दैट दे मैनेज टू कॉन्कर एंड डिफीट द रोमन। और उस ये सारा किस्सा कहानी मैंने आपको बताया था, वो अलेरिक द फर्स्ट ने रोम को सैक कर लिया वगैरह वगैरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता काफी लंबे पीरियड के ऊपर जो है गॉथ्स वगैरह, विसिगॉथ्स, ऑस्ट्रोगॉथ्स वगैरह, इनकी सारी हिस्ट्री अपनी है। तो शार्लेमेन ने जाके फिर यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्कर किया, वो फ्रैंकिश किंगडम बना जो आज का फ्रांस है, और दूसरा वाला जो ईस्टर्न वाला हिस्सा था वो बाद में फिर जर्मनी वगैरह बना। मगर इस वक्त इट वाज नोन एज द होली रोमन एम्पायर। और जर्मन ट्रेडिशन की वजह से इट हैड एन इलेक्टेड मोनार्की। ऑफ कोर्स इलेक्शन सबके लिए नहीं खुला था, कोई माजा गम्मा आ जाएगा मैं अभी बढ़ाऊंगा यू नो वट एवर किंग, ऐसा नहीं था। होता यह था कि प्रिंस इलेक्टर्स थे, यानी प्रिंसेस जो थे वो इलेक्ट कर सकते थे, जो सबसे टॉप लेवल के प्रिंसेस होते थे। कुछ हद तक वो कैथीड्रल चैप्टर्स से बिशप्स वगैरह को शामिल करते थे, जो कैथीड्रल्स बिशप्स बनाते थे वो बिशप्स वोट करते थे। और इस तरह, और जिन लोगों में उन्होंने वोट करना होता था वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड होते थे, जो रॉयल फैमिली है उसी के अंदर वोट। तो वो रॉयल फैमिली इवेंचुअली थी कॉल्ड द हैब्सबर्ग, और उससे हैब्सबर्ग पूरी एक डायनेस्टी बनी, उन्हीं के अंदर वो रहती थी। तो शुरू शुरू में तो और उसको उसको नाम दिया द गोल्डन बुल इन 1356। दिस वाज द लॉ बाय व्हिच द किंग्स in the Holy Roman Empire were selected. From 1440 to 1740, Habsburg was always elected emperor, the throne becoming unofficially hereditary. Officially it was an elected monarchy, but everybody knew inside के ये बस हमें ड्रामेबाजी, असल में तो उसी ने बनना। ठीक है, कभी कभार चेंज होता था कि अगर पुत्र बहुत छोटा है तो फिर वो नेफ्यू को बना लेंगे या किसी और को बना लेंगे। अच्छा, इवन इन सर्टेन टाइम पीरियड्स इन रोम ये प्रिटेंस जो है वो किया करते थे। जिस तरह मैंने अगस्टस की बात की, वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर के बाद जो 5 अगले लोग आए वो सारे के सारे जूलियस सीजर के ही अपने एयर्स थे। मगर उन्होंने हमेशा ये प्रिटेंस जरूर रखा कि नहीं, हमें सेनेट ने एम्परर बनाया, हमें सेनेट ने एम्परर बनाया। को सेनेट एम्परर ना बनाया तो सेनेट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मगर वो ये प्रिटेंस जरूर रखते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है फॉर क्रिश्चियंस टू आंसर इज द क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी। उसकी वजह मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और एक वजह तो उसकी ये थी कि अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटीज की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव करते। वो सारे इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे काम करते थे, इकट्ठे सब कुछ करते थे। तो इस वजह से क्या नाम है, ये एक क्वेश्चन पैदा होता था
कि हाउ कैन वी जस्टिफाई प्रॉपर्टी। दूसरी बात यह है कि इन द गार्डन ऑफ ईडन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। आप देखें ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जब आप सुनते हैं तो आप यही सुनते हैं कि ही कुड ईट फ्रॉम एनी फ्रूट, एनी ट्री, देयर वाज प्लेंटी, ही वाजंट डिडंट हैव टू वर्क हार्ड, देयर वाज नो पेन, देयर वाज नो लेबर, देयर वाज नो वर्क एज सच। गॉड हैड गिफ्टेड एवरीथिंग टू हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो कोई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, मगर इस दुनिया में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी है। तो ये फिर कैसे रिकंसाइल किया जाए दोनों चीजों को कि इंसानियत की जो शुरुआत है उसमें मलकियत नहीं, मलकियती रिश्ते नहीं। So property obviously is the most important of the human institutions that has been created. और जो सेंट फ्रांसिस असीसी का मैंने जिक्र किया, the Franciscan criticism of wealth and its misuse was basically that money is the root of all evil. Possession, in fact, not just money, but possession, material things are the root of all evil. इसलिए ये मटीरियल चीजों से दूर हो जाओ तो फिर आप एक अच्छी जिंदगी और वो वाली जिंदगी गुजारेंगे जो क्राइस्ट ने गुजारी, जो जीसस ने गुजारी। जीसस ने कोई मलकियत नहीं बनाई, कोई मलकियत नहीं थी उस पीरियड में इन लोगों की, एंड सो ऑन। प्राइवेट ओनरशिप लेजिटिमेट एंड इज इट नेचुरल? व्हाट आर द लिमिट्स? फॉर इंस्टेंस, क्या इंसानों को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता? इस पे क्या नुक्ता नजर? स्लेवरी और इनइक्वालिटी पर जो एरिस्टोटल वगैरह के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो आपने सुन ही लिया। वो कहते थे कि जी ये तो नेचुरल है। भाई कुछ लोग होते हैं वो कांड करते हैं, वो नेचुरल मास्टर्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो बातें सुनते रहते हैं, वो नेचुरल स्लेव्स होते हैं। नेचर में भी वो कहते थे हायरार्की, जिस तरह जॉर्डन पीटरसन आज तक लगा रहता है कि नेचर में हायरार्की, नेचर में हायरार्की। तो ये उसने वो उस जमाने से भी आर्गुमेंट ली थी, नेचर में हायरार्की है तो इंसानों में भी हायरार्की, तो देयरफॉर स्लेवरी इज नेचुरल। स्टोइक व्यू इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वो ये कहते थे, स्टोइक्स यानी कि जो रोमन पीरियड के अंदर स्टोइक्स थे, ऑल्दो ग्रीक पीरियड के अंदर शुरू हो गए थे, रोमन पीरियड के अंदर दिस वाज द मेन व्यू। इन द गोल्डन एज men had been free and equal and innocent। ये एक ऐसा व्यू था कि बाद में जाके इंसान करप्ट हुआ विद वेल्थ। स्टोइक्स जो थे वो भी वेल्थ के बड़े खिलाफ होते, वो भी कहते थे कि दफा करो पोजेशन, क्या करनी है। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी आप मेरे वीडियोस देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सोक्रेटिस को कोई खास शौक नहीं था पैसे पूसे बनाने का और इन चीजों का। तो स्टोइक फिलोसोफर्स, वो फिलोसोफर, और फिर उसके बाद और भी बड़े मजेदार किस्म के लोग आए। डायोजनीज द डॉग का कभी सुना आपने? बड़ा पागल आदमी था। एक उसकी ये कहानी, एक तो बात ये कि कपड़े नहीं पहनते, दूसरी बात ये कि वो उसके पास सिर्फ एक प्याला होता था जिसमें वो पानी पीता था और खाना खाता था, और थोड़ी देर बाद उसने ये सोचा ये प्याला जो है ये भी एक पोजेशन है, उसने उसको भी फेंक। लेकिन मैं हाथ से पानी पी सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं प्याले से पानी, ठीक है। तीसरी उसकी कहानी ये है कि एक दफा अलेक्जेंडर उसके पास आया और अलेक्जेंडर ने कहा, डायोजनीज तुम बड़े कूल आदमी हो, तुम्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो डायोजनीज ने जवाब दिया, एक कदम जरा राइट पे हो जाए, मेरे धूप ब्लॉक हो रही है। बस दैट्स ऑल आई नीड टू डू फॉर मी। और भी बड़े मजेदार किस्से कहानियां कि वो रात को एकदम से चिराग लेके आ जाता था, फिरना शुरू हो जाता था, कहता था मैं इंसानों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई इंसानियत नहीं नजर आ रही। तो ऐसे भी बड़े सारे अजीब गरीब मजेदार किस्म के लोग थे। पूरा स्कूल ऑफ थॉट था कॉल्ड स्केप्टिसिज्म, नथिंग इज ट्रू, एवरीथिंग शुड बी क्वेश्चन, ठीक है। पूरा स्कूल ऑफ थॉट था कॉल्ड सिनिसिज्म। मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी उसी स्कूल ऑफ थॉट में आ जाए। क्योंकि एवरीबॉडी सिनिकल अबाउट पाकिस्तान, कुछ नहीं हो सकता, दफा हो, बाहर से निकल जाओ वगैरह, राइट। तो सिनिक्स भी यही कहते थे कि क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरीथिंग, ठीक है। तो खैर उसमें से स्टोइसिज्म निकला। फाइट क्लब विद एडवर्ड नॉर्टन एंड ब्रैड पिट, थैंक यू। अच्छा, फाइट क्लब में जो है ना, वो क्या करने की क्या कोशिश कर रहा होता है फाइट क्लब में? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मुंह में पिस्तौल रख के चला देता है एंड ऑल ऑफ दैट। वो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है ना, वो ये है, जब वो उसको ब्रैड पिट कहता है अपने ही ऑल्टर ईगो को, व्हिच इज प्लेड बाय एडवर्ड नॉर्टन, वो कहता है थिंग्स दैट यू ओन एंड अप ओनिंग यू। जला दो सब चीजों, और इसलिए वो सारे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, ये वो सब कुछ ब्लो अप कर देता है, और अपना सब कुछ भी ब्लो अप कर देता है, अपनी अपार्टमेंट भी ब्लो अप कर देता है। थिंग्स दैट यू ओन एंड अप ओनिंग यू। ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है ना, यू थिंक यू ओन इट, एक्चुअली इट ओन्स इट। ये है। तो इसलिए इन चीजों से दूर होना चाहिए, फिर वी विल बी ट्रूली फ्री। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर आपको तलब है ना किसी चीज की, ये मुझे, ये मेरा हो, बा that is what people use to manipulate you, to get you to do what they want you to do. You will only truly be free when you are free of that desire for possession.
आप इमोशनली अपने आप को किसी कोई बुरी बात हुई होगी दुनिया में, होती है, सबके साथ अच्छी बुरी चीज होती है, मगर आप इमोशनली अपने आप को ज्यादा हर्ट करते हो, आप उस बात को दोहराते रहते हो अपने जहन में, दोहराते रहते हो, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे आज हेलो नहीं किया, ओ माय गॉड, ही शी डजंट लाइक मी, यू नो, द वर्ल्ड इज अ हॉरिबल टेरर, you torture yourself like that. And also, like the Buddha said, desire is the enemy of happiness. When you get something that you like, you go crazy, you're like, oh, this is just the best thing that's ever happened to me, I got the latest iPhone 14, I'm just so happy, etc. You're always looking for validation from external things, and that's always making you unhappy because you cannot control external. You can only control your emotions vis-a-vis external. If you don't believe me, listen to Jennifer Lopez, वो भी यही बात कहती, ठीक है ना? So Stoics ये कहते थे कि to achieve, you cannot achieve happiness. खुश नहीं हो सकते आप, इंसान की तबीयत में ही नहीं खुश होना. By the way, ये 100% करेक्ट बात है. Let me tell you, अभी से बता दूं कि अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं 1 मिलियन रुपीस बना लूंगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, मैं अभी से आपको बता रहा हूं आप खुश नहीं होंगे 1 मिलियन के बाद, तब भी नहीं होंगे. आप 1 बिलियन भी बना लेंगे तब नहीं होंगे. Even very rich people, the richest people in the world, are not necessarily that much happier than people who are not incredibly rich. Of course, if you're starving, you're not going to be happy. Okay? But beyond a certain level, if you have your basic needs met, your happiness is not correlated. You know why? Kind of like you're programmed for it. Once you get that thing, if you could just be happy with that thing, then you would never try for the next. You always desire something more for yourself. And you must, because that's what keeps you moving forward. Because if you got satisfied with what you had, you would never try for anything new. So on the one hand, desire is very important. So your mind is kind of programmed कि एक दफा वो टारगेट आपने अचीव कर लिया ना, जो आपने सोचा था कि ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो बस जिंदगी कूल हो जाएगी, कमाल हो जाएगी. ट्रस्ट मी, जब वो आप टारगेट अचीव करेंगे ना, मेरा ख्याल है 10 दिन तक आप शायद खुश रहेंगे. बहुत, आई विल बी ऑन क्लाउड 9. मेरे लिए कसम से इट्स 1 डे. जब मैं अपना टारगेट पूरा करता हूँ ना, एक दिन मैं बहुत खुश होता हूँ, अगले दिन नहीं मैं उठता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ नहीं कर रहा मैं जिंदगी के साथ, आई एम अ फेलियर, आई बेटर वर्क हार्ड टुडे. दिस इज प्रॉब्लम विद मी, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. आई एम परपेचुअली अनहैप्पी. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम परपेचुअली वर्किंग टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, एंड आई कैन नेवर डू दैट. But I'm perpetually chasing. And in that process of chasing what I desire, I'm of course also self-improving. So if God had made you in this particular way, if nature had made you in this way that you could be satisfied with what you have, then you would never try for anything more. For the Stoics, the problem with this was that it kept you in a perpetual state of unhappiness. So to be unhappy, you couldn't finish this drive inside of you. को खत्म नहीं किया जा सकता इस डिजायर को, मगर इसको टेम्पर किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है. आपके साथ बुरा होना है जिंदगी, मगर you have to temper it. You have to learn to deal with it. Each one of us here, let me give you the bad news, is going to die. Yes, I'm telling you, it's inevitable. कुछ नहीं कर सकते आप इसके बारे में. Each one of you is, your parents are also going to die. Your children are also going to die. Okay, everything ends in death. So given that, there is going to be unhappiness. There is going to be sadness. There will also be happiness. There will also be great sadness. It's part of life. For that reason, Stoics will say that we have to control our emotions. We have to be able to be the master over our own appetites, our desires, our emotions. Happiness and sadness, they have to be controlled. This is a view that the Christians liked, because what it meant was people are not chasing after possessions and material things. And for the Christians as well, as I told you, money and possession, and especially for the followers of St. Francis, money and possession is the root of all evil. So Christians liked this aspect of the Stoic view. But on the other hand, there was also the problem that the Stoics didn't believe in grace from God. They didn't believe in God per se, or at least the Christian God, certainly. So that was one of the things that separated. Now, for Aquinas also agreed, much like the Stoics, that God had given the world to man in common. At that time, there was neither property, slavery, nor political authority by nature. Na to riyasat thi, na malkiyat thi, na la barabari thi, na gulami thi. God did not intend that his rational creature made in his own image
should have lordship over any but irrational creatures, not man over man, but man over the beasts. So lordship over beasts was okay, but lordship over lordship of man over man was not something that is natural. It is part of the fall of man. Slavery is a result of the fall of man. And so is the polis. For Aristotle, polis, aapko yaad, is the highest form for man's attainment of his natural development. But for Aquinas, it is very, very important to have a good polis, but it is not the ultimate. The ultimate, of course, is the community of the faithful. Aquinas did agree with Aristotle that everything has a purpose. The purpose, therefore, of the state was to create the good life. The good life lived in virtue, in Christian virtue now. तो अगर आप ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए जिंदगी गुजारे, मगर अच्छी जिंदगी गुजारे, एक एथिकल, एक अखलाकी जिंदगी गुजारे. और इस जिंदगी के लिए जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रॉब्ली ए मॉडरेट काइंड ऑफ मोनार्की. One man embodies the unity of the common good and the coherence of its pursuit more effectively than the multitude or a numerous body. एक बंदे को इंचार्ज होना चाहिए और वो इस मामले को चलाए, यही सबसे अच्छा है. इसके बाद there were several varieties of law that he looked at. Eternal law, natural law, divine positive law, and differences between them. Eternal law ये था कि God is eternal, God's law, God's principle, जिस principle पे पूरी कायनात बनाई गई, वो एक इटर्नल लॉ है. उसके अलावा एक नेचुरल लॉ है जो स्टोइक्स का कॉन्सेप्ट है, और ये हमें कुदरत से मिलता है. वो इटर्नल लॉ के साथ जुड़ा हुआ है. इट्स पार्ट ऑफ दैट लार्जर इटर्नल लॉ. इटर्नल लॉ जो है वो तो सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड नहीं, तो सब कुछ है उसके अंदर शामिल. और नेचुरल दुनिया में नेचुरल लॉ है, और वो भी उस इटर्नल लॉ का एक सब सेक्शन है, पार्ट है. और उसको समझने के लिए हमें रीजन की पावर चाहिए, मंतक चाहिए, क्योंकि जानवरों में ये होती नहीं. जानवर, एनिमल्स डू फॉलो नेचुरल लॉ, but they don't understand it. Humans can understand it through our reason. And finally, there's divine positive law. इससे मुराद ये थी कि जूस का एक कानून था, क्रिश्चियंस का थोड़ा सा मुख्तलिफ कानून था, बाद में मुसलमान भी आ गए वगैरह. So although they didn't fully acknowledge that that was part of the same tradition. बहरहाल जो ये पॉजिटिव लॉज हैं, इनको फिर कैसे आप देखेंगे कि है भी ये डिवाइन और है भी ये एब्राहमिक ट्रेडिशन का हिस्सा. तो उसको इस तरह से रेकनसाइल किया कि उन्होंने कहा कि the complete law was not given to the Jews. Jews got the part of the law, and then Jesus came and completed it. So we got the complete message. We have the complete code on this. Because gospel, of course, means the New Testament means the New Test is new, and gospel means good news, new good news. So इस वजह से he had to reconcile it with the old Jewish law, and that is how they reconcile it. And there are important differences, of course, between Jewish law and Christian law. For Aquinas, natural law is immutable to its first principles, but not to secondary consequences. कि law, natural law, eternal law, positive law, especially natural and eternal law, the natural law aims to one purpose. मगर जो आप पॉजिटिव लॉ बनाते हैं, हो सकता है कि वो पर्पस अचीव करे या ना अचीव करे. इट माइट बी अ बैडली डिजाइंड लॉ और इट माइट बी पोरली इम्प्लीमेंटेड. हर कानून का कोई ना कोई मकसद है. मिसाल तौर पे अगर कानून ये है कि जी जो चोर है उसको सजा देनी चाहिए, फलां सजा देनी चाहिए, फलां सजा देनी चाहिए, तो उसका मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि चोर को सजा दी जाए ना. मकसद ही एग्जैक्टली कि चोरी कम हो, सोसाइटी के अंदर थेफ्ट कम हो, ये मकसद है. तो अगर किसी कानून के नतीजे में चोरी कम नहीं हो रही, आप लगाई जा रहे हैं, कानून लगाई जा रहे हैं, मगर मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आप उस कानून को तब्दील कर सकते हैं. इवन इफ वो कानून जो है वो चर्च का हजारों साल से चलता आ रहा है, फिर भी आप उसमें अमेंडमेंट करें. वर्सेस वो लोग जो कंजर्वेटिव हैं, वो कहते हैं नो, ये लॉ जो है ये हमारी सीक्रेट टेक्स्ट के अंदर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. डजंट मैटर पर्पस ये वो फलां फ्लू, यही करना, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं करना. ये दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं on how to approach the question of divine positive law. As far as political rule is concerned, there's the ascending and descending theory. Descending theory तो आपको पता ही है कि God gives the power to the king, and the king makes the law because he has been conferred power by God. And ascending theory ये है कि एक political community है, उसने by agreement जो है वो king को मुंतखब किया है या उसको king सोच समझा है अपना, ताकि वो कोई अच्छा कानून बनाए और सोसाइटी को अच्छे डायरेक्शन में लेके जाए. इसमें से बड़ी रेडिकल इंटरेस्टिंग किस्म की कंक्लूजन्स निकलती हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है. बट व्हाट अबाउट, कैन वन कंसिडर लॉ दैट वायलेट्स नेचुरल लॉ अ जस्ट लॉ? ये वो डिबेट थी जो सिसरो और एरिस्टोटल ने शुरू की. तो क्वाइनस कहता है दैट इनकॉम्पिटेंट अटेम्प्ट्स टू इंप्लीमेंट नेचुरल लॉ मस्ट नॉनदलेस बी ओबेड. कि हो सकता है कि लॉ थोड़ा इनकॉम्पिटेंट है, मगर आपको लॉ तोड़ने की इजाजत नहीं है अगर उसका ऑब्जेक्टिव अच्छा है. लॉज लूज देयर अथॉरिटी बाय बीइंग अनजस्ट और बाय सीजिंग टू सर्व द पर्पस फॉर व्हिच दे आर मेड. The purpose of human law is to make men behave virtuously, not merely to organize their relations with one another in a tidy fashion. So that is the purpose of the law. So if the purpose of the law is not being fulfilled, yes, you can change it.
That's an important thing to say. Now, as I told you already, the followers of Saint Francis Assisi and many other Christians thought कि प्रॉपर्टी जो है वो तो ना गार्डन ऑफ ईडन में थी और ना जीसस क्राइस्ट ने कभी प्रॉपर्टी बनाई, तो लिहाजा प्रॉपर्टी जो है वो कोई अच्छी चीज नेसेसरली नहीं है. मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, पोजेशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल. और इस पे पूरा एक ऑर्डर भी कायम था और वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था. और वो खुद पॉवर्टी, स्टोइक किस्म की पॉवर्टी एम्ब्रेस करते थे और वो पब्लिक की खिदमत करते थे. और बाकी वो करते भी थे खिदमत, बहुत चैरिटी करते थे, खिदमत करते थे, लोगों के लिए काम करते थे और पॉवर्टी एम्ब्रेस करते थे. गरीब रहते थे और क्योंकि वो गरीब रहते थे, पॉवर्टी एम्ब्रेस करते थे, ह्यूमिलिटी सिखाते थे. और ये कहता थे अमीर आदमी जो है जरूरी नहीं कि बड़ा करीब हो खुदा के, आपके अमाल से आपको पहचाना जाएगा, तो इसलिए गरीब लोग उनसे प्यार भी बढ़ाते. तो ये था फ्रांसिस्चियन ऑर्डर. और इसके ऑपोजिट था डोमिनिकन ऑर्डर. अब डोमिनिकन्स ये कहते थे, जो कि सेंट थॉमस एक्वाइनस के साथ जुड़ा हुआ है, कि ऑल्दो इंडिविजुअल मेंबर्स प्रॉपर्टी नहीं बनाते और ऑल्दो वो ये समझते थे कि बिशप्स वगैरह को बिजनेस नहीं करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मगर वो ये नहीं समझते थे कि प्रॉपर्टी इज नेसेसरली ईवल. और उनका अपने ऑर्डर के पास प्रॉपर्टी थी और वो काम करवाते थे, चर्चेज वगैरह काम करते थे. और इसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने वही प्रेजेंट की, या सेंट थॉमस एक्वाइनस ने वही प्रेजेंट की, जो कि एरिस्टोटेलियन जस्टिफिकेशन थी, दैट इट इज मोर एफिशिएंट than other sorts of property, both because people care more for their own than for common property, and because we each know which things are our responsibilities to care for. तो इसलिए property इसलिए भी जरूरी है, according to the Dominicans, because it's just a more efficient and better way to organize society. But like Aristotle, they also believed in common use. याद रखें कि Aristotle on the one hand argues the case for private property, but on the other hand, like the Spartans, he also argues the case for common use. Common use क्या थी कि स्पार्टा के अंदर अगरचे लैंड जो है वो प्रॉपर्टी हो सकती है, मगर जो लैंड का प्रोड्यूस था वो फिर एक जगह इकट्ठा होता था जहां पे सारे आके खाना खाते, जो उनका मेस था. ठीक है, तो वहां पे सारे आके मिलकर खाना खाते थे, कोई भूखा नहीं सोएगा. ठीक है, ये उनका सिस्टम था. तो इसी तरह एरिस्टोटल ऑल्सो थॉट कि हाँ, प्रॉपर्टी इंडिविजुअल होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मगर उसमें से जो प्रोड्यूस निकले, उसकी जो यूज है, वो किसी ना किसी हवाले से कॉमन यूज एंड फॉर द गुड ऑल होनी चाहिए. तो यही पॉइंट ऑफ व्यू जो है डोमिनिकन्स भी और लोग भी टेक अप करते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, मगर वो इसको चैरिटी का नाम देते हैं. और वो कहते हैं मैन कैन यूज हिज प्रॉपर्टी एज ही चूजेस सो लॉन्ग एज ही इज रेडी टू शेयर विद अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड. और हम इसको क्या नाम देते हैं? थैंक यू, ज़कात. तो यानी कि अगेन दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट ओनरशिप बट विद कॉमन यूज ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स. अब थीवरी तो बड़ी बुरी चीज है, इसीलिए मैंने अली बाबा 40 चोर की तस्वीर लगा दी यहाँ पे. चोरी करना तो बड़ी बुरी चीज है. वैसे अली बाबा तो मेरा बड़ा फेवरेट है, अगरचे वो चोर भी था, मगर बहरहाल I forgive him because उसके एडवेंचर्स बड़े मजेदार थे. एंड ही वाज काइंड टू द पुअर, काइंड ऑफ लाइक अ रॉबिन हुड गाय. मगर एक्वाइनस जो है उसमें एक और बात शामिल करता है, और वो ये बात कि अगर कोई गरीब भूखा मर रहा है तो फिर उस गरीब के पास एक हक है कि जो अमीर की सुपरफ्लुअस या सरप्लस वेल्थ है वो गरीब का हक है. इट बिलोंग्स टू द स्टार्विंग मैन एंड दैट ही कमिट्स नो थेफ्ट इन टेकिंग व्हाट इज हिज बाय राइट ऑफ नेसेसिटी. ये बड़ी रेडिकल किस्म की बात है कि भाई अगर एक बंदा भूखा मर रहा है और आपके पास वफर अनाज पड़ा हुआ है, तो अगर वो आपके गोदाम में से आके अनाज अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को जिंदा रहने के लिए निकाल रहा है, तो ये चोरी नहीं है, बल्कि ये उसका हक था. क्योंकि आपका फर्ज बनता था कि जो जायद आपके पास है, जो आपकी जरूरत से ज्यादा है, आपका भी फर्ज बनता था कि आप इसको चैरिटी में दे दें. आपने नहीं दिया, ये था ही गरीबों का. आगे ही टॉक्स अबाउट वॉर, जस्ट वॉर. सेंट अगस्टीन की बारी भी हमने जस्ट वॉर की बात की, तो वो भी ये कहता है कि 3 चीजें हैं जो जब पूरी होंगी तो फिर वॉर जस्ट होगी. एक तो बात ये है कि वॉर तभी जस्ट होगी जब खलीफा कहेगा, सॉरी जब हाँ, इट्स ट्रू. हमारी भी जस्ट वॉर थियरी ये कहती है कि जिहाद इज नॉट जिहाद टिल द खलीफा वक्त डिक्लेयर्स दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर जिहाद. सो नंबर 1, इट हैज टू बी ऑफिशियल. ये नहीं कि माजा गामा उठ के तैमूर है आके कहेगा मैं डिक्लेयर करता हूं कि हम जिहाद करने लगे हैं. ये ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है, इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड बाय पर्सन और पर्संस ऑथराइज्ड टू डू इट. प्राइवेट रिवेंज एंड बैंडिटरी आर नॉट वॉर एंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड. Individuals have courts to turn to for the redress of injustice and neither need to resort to war nor have authority to do so. कोई बंदा उठ के ये नहीं कह सकता कि मेरा नाम फलाना बगदादी है और मैं जो हूँ वो जिहाद डिक्लेयर कर रहा हूँ. इट्स नॉट जस्ट वॉर. ठीक है, तो पहली बात. दूसरी बात, ये कॉज मस्ट बी जस्ट. किस कॉज के लिए आप लड़े? वॉर शुड बी फॉट ओनली इन सेल्फ डिफेंस. अब सेल्फ डिफेंस में वो ये शामिल जरूर कर लेता है कि आप प्रीएम्प्टिव अटैक भी कर सकते हैं. अगर आपको पता है दूसरा अटैक करने लगा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने दिफा के लिए आप प्रीएम्प्टिव अटैक भी कर सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ टेरिटरी को ऐसे आप टेक ओवर कर लें
प्रीएम्प्टिवली टेक ओवर कर लें, क्योंकि अगर आपको पता हो कि शायद वो पहले आपकी थी, आपसे गलत ले ली गई, या किसी वजह से आपको फील होता है कि ये प्रीएम्प्टिव वॉर या डिफेंस के लिए जरूरी है कि मैं ये टेरिटरी टेक ओवर करूं, तो ये इस काइंड ऑफ प्रीएम्प्टिव टेकिंग ओवर ऑफ टेरिटरी वुड बी जस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट थॉमस अक्वाइनस. सो इट हैज टू बी फॉट विद द राइट इंटेंशन. का मतलब ये है कि आप इस मकसद के लिए नहीं लड़ सकते कि भाई, आप इस मकसद के लिए लड़ सकते हैं कि दूसरे को पनिश किया जाए, जस्टिस रिस्टोर हो, सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ सकते हैं, मगर ये नहीं कर सकते कि जाके आप जेनोसाइड कर दें, मार दें, यू नो, सारों को रिवेंज में जो है कि ओ तू मनु अख खाइए, मैं तेरा जदी पुश्ती मैं तेरी खत्म कर देंगे. ये नहीं कर सकते आप, ठीक है ना. तो मगर ये तो डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट है, इनकमेंसरेट पनिशमेंट कहते हैं, तो इसलिए वो नहीं दुरुस्त होगी. ये लॉ का भी असूल है ना, पनिशमेंट हैज टू बी कमेंसरेट विद द क्राइम. ठीक है, ये तो नहीं हो सकता कि आपने इतनी सी पेन मेरे से चोरी कर ली हो और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा हाथ काटना है. ये तो नहीं है ना. यू हैव टू डू समथिंग रियली रियली सिवियर. जानो माल को खतरे में डाला है आपने, तो फॉर दैट लेवल ऑफ पनिशमेंट, जिसको हद पनिशमेंट हम कहते हैं, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली पनिशमेंट हैज टू बी कमेंसरेट विद द क्राइम. और आखिर में ये कि पादरियों को नहीं जाना चाहिए. रिलीजियस लोगों का ये काम नहीं है कि वो जाके जंगे जुंगे लड़े, और रिलीजियस लोगों का ये काम नहीं है कि वो जाके बिजनेस करें, या इन दुनियावी कामों के अंदर रिलीजियस लोगों का काम नहीं. मगर दुनिया में ये होता है और जरूरी है. स्टेट इन क्रिश्चियनिटी, स्टेट ऑफ कोर्स एक्सरसाइज अर्थली पावर एंड चर्च एक्सरसाइज स्पिरिचुअल पावर. फिर इसका मतलब यही था कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो तो चर्च के पास है. बिकॉज इफ देयर इज अ ग्रेव सिन, द चर्च कैन एंड डज इंटरवीन इन अर्थली मैटर्स. इंक्लूडिंग वो ये भी कह सकती है कि ये फलाना फलाना बादशाह जो है कि ये बड़ा सिनफुल किस्म का बंदा है, और लिहाजा चर्च जो है इसको एक्सकम्युनिकेट करती है, यानी कि ये अब क्रिश्चियन नहीं है. और ये बड़ी सीरियस एक्सकम्युनिकेशन फ्रॉम द चर्च, बड़ी यानी कि पावरफुल किस्म का हथियार था उनके पास. So in that sense, final authority is with the church, because church is going to be answerable for the flock in front of God. The state must do all it can to facilitate the church. ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टेट और चर्च जो इंडिपेंडेंट हैं. चर्च का, स्टेट का कोई काम नहीं है कि वो एक रिलीजन या दूसरे रिलीजन को सपोर्ट करे. स्टेट ने सिर्फ अर्थली मैटर्स, नो, ये कोई कॉन्सेप्ट उस पीरियड के अंदर नहीं है. स्टेट ने वो सारी चीजें करनी है जिसके नतीजे में चर्च जो है वो कामयाब हो. ये चर्च का पॉइंट ऑफ व्यू है, चर्च और क्वाइनस का पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्टेट ने में फैसिलिटेट करना है हर हवाले से ताकि क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करे. There is no sharp line there for separating authority of church and state. Autonomous realms हैं, मगर वो realms जो है वो अक्सर एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस करती हैं, और पोप और किंग्स की आपस में, आपने देखा पिछले चैप्टर के अंदर, अक्सर अथॉरिटी के क्वेश्चंस पर लड़ाई झगड़ा, टेंशन, कॉन्ट्रडिक्शंस हुआ. हेरेटिक्स को कोई माफी नहीं है. नॉन क्रिश्चियन हो कोई खैर है, कोई मसला नहीं, वो तो पैदा ही मुसलमान हुआ, उसका क्या कसूर है, या कोई पैदा ही कुछ और हुआ, उसका कसूर नहीं. मगर हेरेटिक यानी कि वो बंदा जो कि क्रिश्चियन था और क्रिश्चियनिटी छोड़ के और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें करता है, उसको नहीं कोई माफी, कतई तौर पे. उसके ज्यादा वो सख्त खिलाफ थे. बाय द वे, दिस इज ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल रूल ऑफ दीज रिलीजन्स, कि जो हेरेटिक है ना, इज अ बिगर सिनर देन द नॉन बिलीवर, बिगर सिनर देन अ क्रिमिनल एंड अ नॉन बिलीवर. नॉन बिलीवर जो है ना, वो इतना बड़ा सिनर नहीं है, उसको सिनर भी नहीं माना जाता. उसको बस ये कहा जाता है कि अभी इस तक पैगाम सही तरह से पहुंचा नहीं, या ग्रेस ऑफ गॉड नहीं पहुंची. मगर जो क्रिश्चियनिटी कबूल करके छोड़ेगा ना, वो अपोस्टेट है. उसके लिए जो सजा है ना, वो बड़ी सख्त है. तो हेरेसी जो है ना, टू चैलेंज क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स इन एनी वे इज ह्यूज ह्यूज. और इसलिए उन्होंने उनको बड़ा मारा. क्रिश्चियंस ने हेरेटिक्स को खूब मारा, जिंदा जला दो, टॉर्चर करो, जला, हर किस्म के हॉरिबल थिंग्स उन्होंने, इंक्विजिशन कर दो, टॉर्चर करो अंटिल दे से कि हाँ जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज. तो हेरेटिक्स पे इनफैक्ट अक्वाइनस भी जो है बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं. ठीक है, ओके. सो Jews were considered to be the slaves of the church. Why? Because Jews were implicated in the crucifixion of Jesus Christ. For that reason, they were considered to be slaves. But of course, in reality, that didn't mean that they were literally slaves. But it meant that they, अगर रियासत चाहे या चर्च चाहे, तो उनको उनकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकती थी, उनको कह सकती थी कि उनको दबा सकती थी, और वक्तन फवक्तन दबाते भी रहते थे, और प्रोग्राम्स भी करते रहते थे, कभी लिंच कर देते थे, कभी मार देते थे वगैरह. द स्टेट हैड द राइट टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ नॉन बिलीवर्स टू प्रोटेक्ट द चर्च. अगर हेरेसी कोई कर रहा है तो उसको दबा के देने का हक है, और हेरेसी को कर रहा है तो उसको मार देने का भी हक है, और बुरी तरह से मार देने का भी हक है, ताकि और कोई ना करे. कोएर्जन वर्क्स, दे बिलीव दैट, एंड माइल्ड कोएर्जन वर्क्स बेस्ट. थोड़ा थोड़ा फोर्स करो, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फोर्स करोगे तो वो बागी हो जाएगा. मगर थोड़ा 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 फोर्स करते रहो कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है. इमोशनल फोर्स भी करते रहो और दूसरी फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही है ना कि खुद कि दिस इज अ गुड थिंग,
खुदा के आपने करीब पहुंचना है तो आपको अगर फोर्स थोड़ा सा करे हैं तो कुछ नहीं होता. इट्स लाइक फोर्सिंग अ चाइल्ड टू डू गुड थिंग्स. इसमें कोई बुरी बात नहीं. वो समझते थे, वो उनका ये नुक्ता नजर था. क्रिश्चियन शुड ओबे नॉन क्रिश्चियन रूलर्स एक्सेप्ट इफ द रूलर्स फोर्स देम टू गिव अप कोर टेनेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. यानी कि अगर आप एक क्रिश्चियन हैं और आप मुसलमानों की मुल्क में रह रहे हैं तो आपने वहां के कानून को ओबे करना है, अनलेस कि वहां का कानून को ऐसा हो कि जो कि ये कहे कि भाई आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो जाए, फिर आपने नहीं मानना. अदरवाइज जो दुनियावी कानून है उनको मानते हुए चल रहा है. अक्वाइनस थॉट के एक मॉडरेट किस्म की मोनार्की होनी चाहिए. इसका मतलब उससे ये था कि a wise king governs, अगरचे बादशाह तो बना gets his authority from God, but a wise king always governs with advice and consent of his nobles and in conformity to the teachings of the church. ठीक है. सो wise king जो है ना, लोगों की बात, सब लोगों की नहीं मगर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उसमें चर्च भी शामिल है, उनकी बात सुन के फैसले करता है. The aim of course is the common good, which is living in a common life of virtue. That is the aim of all earthly laws. एंड टिरनी जो है, जिसमें एक बुरा बादशाह हो, एक घटिया किस्म का बादशाह हो जो डिक्टेटरशिप टाइप लगाए, इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों? सिंस द किंग्स अथॉरिटी रेस्ट ऑन द, क्यों इतनी बुरी है? इसलिए बुरी है क्योंकि अगर डेमोक्रेसी हो ना और टिरानिकल किस्म की डेमोक्रेसी हो तो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे वो आपस में लड़ते रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं. इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है उसके नुक्ता नजर में. डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है. तो अगर बुरी हुकूमत है ना तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट काइंड ऑफ बुरी हुकूमत, बिकॉज उनसे बुरा होगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि इनएफिशिएंट है. मगर अगर कोई डिक्टेटर आ जाए, टिरानिकल डिक्टेटर किस्म का आ जाए और बुरा आदमी आ जाए, वो एफिशिएंट भी होगा और वो अपनी एफिशिएंसी किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा? टू डू इविल, टू डू बैड थिंग्स. तो एफिशिएंट इविल पर्सन इज वर्स देन एन इनएफिशिएंट इविल कमिटी ऑफ पीपल. ठीक है. सो इसलिए वो ये कहता था सिंस फिर उसने ये लिखा जो बड़ी मजेदार बात है कि क्योंकि किंग्स अथॉरिटी रेस्ट ऑन द कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, his removal from office must be an act of the community. कोई इंडिविजुअल किंग को नहीं हटा सकता, but if king is not serving the community then community can argue the case कि किसी और को किंग होना चाहिए. Of course this goes back to the idea of the elective democracy जो कि होली रोमन एम्पायर के अंदर कायम भी थी. So वो इलेक्टिव डेमोक्रेसी सारे नहीं वोट कर रहे, सिर्फ प्रिंसेस जो है वो ही वोट कर रहे हैं, जो बड़े ताकतवर प्रिंसेस हैं. ठीक है. So now but Aquinas leaves this question open कि जनाबे अली अगर किंग जो है वो अपनी अथॉरिटी अगर उसको रिमूव कर सकता है, कर सकती है कोई कम्युनिटी है जो इसको रिमूव कर सकती है, तो फिर इसका मतलब है किंग अपनी अथॉरिटी उस कम्युनिटी से ले रही है जो उसको रिमूव भी कर सकती है. अगर किंग जो अपनी अथॉरिटी ऊपर से नहीं ले रही मगर उस कम्युनिटी से ले रही है जो उसको रिमूव करने का हक रखती है, तो सवाल जो खुला रहा और उसने उसका जवाब नहीं दिया वो ये है कि फिर वो कौन लोग हैं जो ये हक जिनके पास ये इख्तियार है कि वो बादशाह को रिमूव कर सकते हैं या बादशाह को इलेक्ट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन पैदा हो, वो कौन लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि इन लोगों के पास इख्तियार है बादशाह को सिलेक्ट करने का, हटाने का या रखने का. तो दैट क्वेश्चन इज देन टेकन अप इन द 1680s बाय जॉन लॉक, जिसका आप भी जिक्र खैर कर रहे थे. जब वो रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करता है तो वो भी लफ्ज इस्तेमाल करता है अपील टू हेवन. और अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज सेंचुरी लेटर आल्सो रिलाइड ऑन द सेम एग्जैक्ट डॉक्ट्रिन्स. ये डॉक्ट्रिन्स उन्होंने एक तरह से थॉमस अक्वाइनस से क्योंकि लिए, तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जॉन लॉक इज काइंड ऑफ लाइक अ डिसाइपल ऑफ थॉमस एक्वाइनस, क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया उस कम्युनिटी को जो ये हक रखती है कि वो सॉवरेन को इलेक्ट करे या रिमूव करे. है ना दिलचस्प किस्म की बात. यानी कि एक्वाइनस ने खुद ये कदम नहीं उठाया, मगर उसी की थॉट की तसलसल में आप आगे बढ़े, इस थॉट की तसलसल में जब आप आगे बढ़े तो आपको ये बंदा मिल जाएगा. द बॉडी दैट कुड डिसमिस द सॉवरेन मस्ट बी द सोर्स ऑफ द सॉवरेन्स पावर एंड दैट ही कुड गवर्न ओनली एज इट्स एजेंट. डाउन दैट पाथ ले द कंसिलियर मूवमेंट. ये भी चर्च के अंदर एक मूवमेंट थी विद इन द चर्च. द रिवाइवल ऑफ द रिपब्लिकन थियरी, जो सिसरो की थियरी थी कि बादशाह नहीं होना चाहिए बल्कि एक कमेटी, एक सेनेट होनी चाहिए जो सिलेक्ट करेगी कौन रूल करेगा कौन रूल नहीं करेगा, और वो बेसिकली रूल कर रहा है. उसको एक तरह की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, अथॉरिटी दी हुई है. यू कन्फर एन ऑथर अथॉरिटी ऑन टू समवन, यू गिव अथॉरिटी समवन. इट डजंट कम फ्रॉम गॉड, इट कम्स फ्रॉम पीपल एंड इट स्टेज देयर एज लॉन्ग एज पीपल कंटिन्यू टू गिव इट दैट अथॉरिटी. और बाद में सिटी स्टेट्स ने इसको टेकअप किया, इटली के अंदर जो सिटी स्टेट्स बने, एंड वेरी मच फर्दर डाउन द रोड it led to the rise of what we could call modern representative democracy. But of course, a lot had to change
बिफोर दैट वाज द केस। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चर्च की अपनी पावर टूटी तो तब जाके कहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो पैदा हो सकी और सेक्युलर गवर्नमेंट्स और ये सब कुछ सारा नया मॉडर्न सिस्टम जो है वो इमर्ज कर सका। दैट्स इट, थैंक यू।